So moving on to our topic, in between, I must tell you about a learning platform, that is the Unacademy. You can boost up your preparations for the various competitive examinations with the help of the Unacademy. You can join the Unacademy Plus subscription as well as the Iconic subscription for various exams like the GATE Excel, GATE Biotechnology, and the GATE ESC as well as the CSIR NET exam. They also conduct the All India mock test exams for the GATE 2020 for every Sunday from January 2 to January 30. You can enroll for this particular mock test for various exams, and for the GATE aspirants, the link for the enrollment I will give in the description. At Unacademy, you can clear all your doubts at a live time. You can raise a hand in between a class, or you can talk to your educator in a live class by raising a hand. So it will create a classroom-like environment on the platform, on the online platform also. You can also ask your doubt even post class. आप क्लास के बाद भी अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं. You can take a picture of the doubt, or you can type the doubt and can send to your particular educator. If you are an Unacademy Plus subscriber, you can ask the doubt anytime on the Unacademy. Unacademy provide interactive live classes. They also generate polls for the learners where you can clear your doubts as well as the group discussions. You can never miss a class. You can get a recording of the class later as well. And you're also getting alerts or the notification for the class for a particular time. You're also having the PDF notes for any concerned topic or any class, and anytime, anywhere. You can access all of the recordings. If you're a Plus subscriber, you can access all of the educators and their recordings anytime to prepare your notes and to get their PDF notes. So these are also some perks that the Unacademy provide on the learning platform. Along with the Plus subscription of the Unacademy, they also offer the Iconic subscription, where you can access your educator, or you are having access with your educator in a live time, where you can clarify your concepts, you can discuss your doubts, and you can have the live mentoring sessions for the exam strategy, even in the Iconic subscription. And in the Plus subscription, you can access all the perks that we have just discussed, like live classes, video recordings, as well as the PDF notes. The GATE ESC aspirants can join the new batches for the GATE 2K23 and 2K24. The batches are starting from the 19th of the January. So all of the aspirants which are targeting the 2023 and 2024 GATE, they can join the various branches according to their concerned branch, like mechanical, civil, or the electrical. Using a code YG10, you can join the Unacademy Plus subscription and you will get a 10% discount on your subscription. So let's just start with our अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन, तो जहां कोई इंटरवल नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं है, वहां तो सिंपली था कि nth टर्म या तो n/2th टर्म या n/2th प्लस n/2th प्लस 1, जो दो है उनका एवरेज लेकर निकाला जाता है. ग्रुप्ड डाटा यानी जहां ग्रुपिंग हो चुकी है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज जहां इंटरवल नहीं है, इंटर वाली कंटिन्यूस कहलाती है. अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज. तो डिस्क्रीट डाटा जो है, इसका मीन कैसे निकालें. तो डिस्क्रीट डाटा हमेशा रिपीटेटिव दिया जाता है कि सपोज 100 रुपए 24 आदमी कमाते हैं, 150 रुपए 26 आदमी कमाते हैं. तो पहले तो मान लीजिए कमाई ऐसे लिखी जा सकती थी कि कुछ 7 लोगों की कमाई ऐसे है. अनग्रुप्ड डाटा में देखो कैसे लिखा जाता था कि कोई 100 रुपए कमाता है, कोई 160, कोई 180, कोई 140. जरूरी नहीं है आपका सेंडिंग में दे, ऑलरेडी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में. कोई 185 कमाता है, 115 कमाता है, या कोई 105 कमाता है. ये अनग्रुप्ड डाटा था. लेकिन ग्रुप्ड डाटा में और डिस्क्रीट सीरीज में बिना इंटरवल के वैल्यूज दी जाती है. तो हम इसको एग्जांपल से ही समझेंगे और हम देखेंगे कैसे इनका मीडियन कैलकुलेट किया जाता है. तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज और निकालनी पड़ती है. अगर आपको याद हो, मीन में भी हमें डिस्क्रीट सीरीज में मिड वैल्यू निकालनी पड़ती थी इंटरवल में, तो और फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ती थी. तो यहां भी हमें वही करना पड़ेगा. अब मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं डायरेक्ट कि कुछ पीपल हैं, उनकी इनकम दिखा रहा हूं रुपीज में एक तरफ, और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन कि वो हैं कितने, क्योंकि बार बार है, रिपीटेटिव है ग्रुप्ड डाटा, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एफ. चलिए वैल्यूज की हम बात करते हैं. तो 100 है इनकम किसी की 150 इनकम है, किसी की 80 रुपीज इनकम है, किसी की 200 इनकम है, 250, 180. ये कुछ वैल्यूज हमें दिए हुए हैं. फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है कि 100 वाले 24 हैं, 150 वाले 26 हैं, 80 वाले 16 हैं, 200 वाले 20 हैं, 250 वाले 6 हैं, और 180 वाले 30 हैं. कि इतने लोग इतने रुपए कमाते हैं. ये एक ग्रुप्ड डाटा दे दिया.
अब इसका मीडियन निकालिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अनग्रुप्ड डाटा की बजाय इस तरह से मीडियन निकालना। तो हम देखेंगे प्रोसीजर है क्या, किस तरह से फाइनली हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो डाटा है इसकी एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज का मतलब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एवरेज का मतलब ऐसा नहीं कि मीन निकालने हम बैठ जाए। ध्यान से देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। 150 के बाद 80 आ गया, तो पहले डाटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ये मीडियन का रूल ही है। तो चलिए मीडियन के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम अरेंज करते हैं। आप असेंडिंग भी अरेंज कर सकते हो, आप चाहो तो डिसेंडिंग भी अरेंज कर सकते हो। मैं स्टेप भी लिख देता हूं कि अरेंज डाटा। हम असेंडिंग अरेंज करते हैं। असेंडिंग के अकॉर्डिंग सबसे कम इनकम है 80 रुपए। इधर दिखाते हैं इनकम, इधर दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ पर्सन। तो सबसे कम इनकम है 80 रुपीज, फिर है 100 रुपीज, फिर है 150 रुपीज, फिर है 180 रुपीज, फिर है 200 रुपीज, फिर है 250 रुपीज। अब फ्रीक्वेंसी तो वही रह जाएगी ना, इनको असेंडिंग थोड़ी ना करना है। 80 रुपए कमाने वाले तो 16 ही, ठीक है। 100 रुपए कमाने वाले 24 हैं, 150 कमाने वाले 26 हैं, 180 कमाने वाले 30 हैं, 200 कमाने वाले 20 हैं, और फाइनली 250 कमाने वाले 6 हैं। तो टोटल पर्संस की बात की गई है, ये एन होता है। कितने पर्सन है टोटल कैलकुलेट कर सकते हो आप। 16, 24, 26, 30, 20 और फाइनली 6। इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 40, 26 जो है 66, 96, 116 और 6 122। मैंने ये कैलकुलेट करी है। समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज एन। आदमी है कितने भाई। इन 122 इनकम को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि 80 80 80 16 बार 80 लिख दीजिए। 122 क्वांटिटीज को ऐसे लिख देते थे, अनग्रुप डाटा हो जाता, लेकिन ये ग्रुप्ड डाटा है। तो n इज इक्वल टू 122। तो सबसे पहले हमने इनको अरेंज किया। अब हमें इनकी फाइंड आउट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और तरह की फ्रीक्वेंसी यहां पर कैलकुलेट की जाएगी। ये क्रूशियल स्टेप है, ये करना ही करना पड़ेगा, तभी मीडियन आ पाएगा। अब इस पर हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं करा था, केवल अरेंज करा था गिवन वैल्यूज को। सेकंड हमने क्या कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट करी। ये स्टेप आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये करने ही करने होते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर बहुत डिटेल में बात करें तो मैथमेटिक्स का एक अलग से टॉपिक है, बट सिंपल शब्दों में आपको इसको कहूं तो ये इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी एक तरह की। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है या कुछ पर्सन हैं जो 2 चपाती खाते हैं। मानो 10 लोग ऐसे हैं जो 2 चपाती खाते हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो 4 चपाती खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये 20 लोग एटलीस्ट 2 तो खा ही रहे हैं ना, यानी उनमें तो शामिल होंगे ही होंगे। 2 चपाती खाने वालों में 20 ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। हाँ, खासियत यह है कि बचे हुए 10 और 2 एक्स्ट्रा खा सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक इंक्लूडेड फ्रीक्वेंसी, कि पिछली को हम इंक्लूड कर ही कर लें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, बहुत ध्यान से समझिएगा, 80 रुपए कमाने वाले तो 16 ही लोग हैं, तो इसकी तो सेम ही रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। अब 100 रुपए कमाने वाले 24 लोग हैं। जो लोग 100 रुपए कमा रहे हैं वो इसका मतलब 80 तो कमाई कमा रहे हैं, तो उसमें 16 पीछे वाली फ्रीक्वेंसी और ऐड हो जाएगी। जो लोग 150 रुपए कमा रहे हैं वो 26 है, लेकिन जो 150 कमा रहे हैं इसका मतलब वो 100 भी कमा रहे हैं और वो 80 भी, तो 24 प्लस 16 पीछे वाली भी ऐड होती जाएंगी। तो ये एक रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग देखो कैसे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं कि 80 कमाने वाले 16 हैं, तो इस वाली क्लास, ये क्लास कहलाती है, इस क्लास की जो है फ्रीक्वेंसी तो सेम है, क्यूमुलेटिव भी और नॉर्मल भी। लेकिन अब देखो 100 रुपए कमाने वाले 24 प्लस 16 40, 150 कमाने वाले 40 प्लस 26 66, 180 रुपीज कमाने वाले 66 प्लस 30, क्योंकि वो तो होंगे ही होंगे 96, 200 रुपए कमाने वाले 116, और फिर 250 रुपए कमाने वाले 6 प्लस 116 यानी 122। ऐसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट फाइनली हम कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला वही रहता है कि मीडियन जो होता है वो अगर ऑड क्वांटिटी है तो वो n/2 टर्म होगी। और यहां एक चीज हम देखेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे, अभी आप ये चीज समझेंगे। ऑड है तो n/2 टर्म, इवन है तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये सेम वही जो हम अनग्रुप्ड डाटा में पढ़ते थे।
अब यहां टोटल देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 122 है, तो यहां एन हमारा 122 है। क्योंकि एन इवन है तो फॉर्मूला में हमें एवरेज लेना पड़ेगा, यानी हमें एन बाई टूथ टर्म लेनी पड़ेगी, फिर हमें एन बाई टूथ प्लस वंथ टर्म लेनी पड़ेगी, और फिर हमें उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। अनग्रुप में याद कीजिए 3, 5, 6, 7, मानो मैंने 4 वैल्यूज को अरेंज कर दिया असेंडिंग, तो वहां मीडियन हम बीच वाला नहीं ले सकते, हम क्या करते हैं, एन बाई टूथ 4/2 यानी दूसरी टर्म, और 4/2 प्लस 1 यानी 2 + 1 तीसरी टर्म, तो दूसरी टर्म 5, तीसरी टर्म 6, 5 और 6 का एवरेज लेते, वो हमारी वैल्यू आती मीडियन। तो यहां भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इवन वैल्यू है तो हमें n/2 टर्म लेनी पड़ेगी और उससे अगली लेनी पड़ेगी। तो 122 का n 122 है, इवन का फॉर्मूला देखिए 122 टर्म प्लस, नॉट 122 सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 2, n/2 टर्म होगी 122 बटे दूसरी टर्म, 122 लोगों में से n/2 क्या होगा, 122 बटे 2 होगा, प्लस n/2 प्लस 1, 122 बटे 2 प्लस 1, चाहे आप इसको एलसीएम से सॉल्व करें चाहे नॉर्मली सॉल्व करें, 122 बटे 2 क्या होगा, 61, 61वां पर्सन उसकी इनकम, प्लस जब आप उनको असेंडिंग अरेंज कर चुके होंगे, प्लस 61 प्लस 1, सीधी सी बात है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 62th पर्सन 62वां पर्सन, और उन दोनों की इनकम का एवरेज हमारा मीडियन होगा। देखो अगर 121 लोग होते तब तो मैं कह देता कि डायरेक्ट इसको जो है 1 करके 2 से डिवाइड कर दो, तो भाई ये हो जाता है 122 बटे 2, यानी 61वें आदमी की जितनी कमाई होती वो कमाई मीडियन होती, ठीक है, 61वें पर्सन की जो कमाई होती वो डायरेक्ट मीडियन आ जाती। हालांकि अपने को डायरेक्ट पता नहीं चलता 61वें आदमी की कमाई क्या है, ठीक है, बट अभी उसको मैं रिलेट करूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो हमने इवन टर्म होने के कारण जो वैल्यू है उसको इस तरह से फाइंड आउट किया कि n/2 टर्म बिल्कुल अनग्रुप्ड डाटा के फॉर्मूला की तरह, और n/2 प्लस से एक अगली टर्म, उनका एवरेज अपन लेंगे, तो 61वीं टर्म 62वीं टर्म डिवाइडेड बाई 2, इनको काउंट कीजिए, 61 और 62 जो होते हैं आपके टोटल ये होंगे 123 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे वही अगेन 61 और हाफ यानी 61.5%, 61.5 जो हमारी पर्सन है उसकी जितनी इनकम है वो अपना मीडियन है। समझिए 61.5वां जो आदमी है उसकी कमाई अपनी इनकम है। क्या आप मुझे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखकर ये बता सकते हो कि 61.5वां आदमी किस इनकम रेंज में आता है? तो देखिए अगर 14th पर्सन आ जाता आंसर अपना तो हम कह देते कि 100 रुपए एवरेज इनकम है, लेकिन 61.5 यानी 61.5वां आदमी वो आता है इस रेंज में 41 से लेकर 66 वाली रेंज में। तो अगर किसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 41 था यानी 41th पर्सन की कमाई 150 रुपए ही है। समझिए 80 इनकम वाले पहले हम 16 लिखेंगे, 80 गुणा में 16, जब मैं 122 को लीनियर लिखने लगूंगा ना इन 122 को, तो मैं सबसे पहले 16 बार 80 लिखूंगा, फिर मैं 24 बार 100 लिखूंगा, तो जब मैं 16 बार 80 लिख चुका हूं, मैं 24 बार 100 लिखूंगा, तब तक मैं 40 पर्सन की इनकम लिख चुका हूं। जब मैं 41वें पर्सन की इनकम लिखूंगा तो उसको मैं 150 लिखूंगा, समझिए इस चीज को। जब मैं 42वें पर्सन की इनकम लिखूंगा तो मैं उसको 150 लिखूंगा बार बार, और 26 बार 41वें से लेकर 66वें पर्सन तक सबकी इनकम में 150 लिखूंगा। तो 61.5वां पर्सन भी, हालांकि ऐसा एग्जिस्ट कर नहीं सकता लेकिन चलो आ भी गया, तो 61वां और 62वां दोनों पर्सन की इनकम 150 ही रुपए है, तो मीडियन वैल्यू इस डाटा की वो होगी 150 रुपीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, मीन जो हमने मीडियन जो हमने निकाला वो निकालने का फॉर्मूला वही है कि n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, क्योंकि इवन वैल्यू थी, ओड होती तो सीधा n/2 टर्म हम कह देते। तो जो 61.5वां पर्सन आया उसकी इनकम 150 रुपीज, वो इस रेंज में है। इस एग्जांपल से भी मैंने आपको बता दिया कि 80 बार 16 बार 80 लिखूंगा, फिर 24 बार 100 लिखूंगा, तो 40% तक ऐसे लिख चुका हूं। 41th पर्सन से 66th पर्सन जो मैं 122 लिखना चाह रहा हूं उसमें सबकी इनकम 150 रुपए, तो वही मीडियन वैल्यू है। तो इनकम का हमें मीडियन निकालना था, इनकम जितनी भी दी गई थी उनका मीडियन हमने निकाला, तो मीडियन आया 150 रुपीज।
एक और एग्जांपल हम लेते हैं अनग्रुप्ड डाटा का ही, डिस्क्रीट सीरीज का, लेकिन ओड वैल्यू। इस बार अपन जो फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे वो ओड आना चाहिए ताकि फॉर्मूला दोनों हम जस्टिफाई कर सके, समझ सके। भाई 20 नंबर आते हैं 6 स्टूडेंट्स के, 25 नंबर आते हैं 16 स्टूडेंट्स के, 50 नंबर आते हैं 7 स्टूडेंट्स के, केवल 9 नंबर आते हैं 4 स्टूडेंट्स के, 80 नंबर आते हैं 2 स्टूडेंट्स के, और 40 नंबर 40 नंबर आते हैं 8 स्टूडेंट्स के। सबसे पहला स्टेप अरेंज कीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग में अरेंज करता हूं। चलिए इसको असेंडिंग में हम अरेंज करते हैं। स्टैट नीड्स टाइम, गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं। सबसे कम नंबर 9 है, असेंडिंग में करना है। 9 नंबर है, फिर 20 है, फिर 25 यानी 25, 40, 50, 80। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, नंबर थोड़ी ना बदल जाएगा स्टूडेंट्स का। हमने अरेंज डाटा कर दिया, ये अपना डाटा था नंबर। तो 9 नंबर 4 ही स्टूडेंट्स के हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं आप इसके अकॉर्डिंग इनको भी असेंडिंग अरेंज कर दे, अपना डाटा अरेंज करना हमें। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था। 20 नंबर 6 बच्चों के हैं, 25 जो है वो टोटल 16 के हैं, उसके बाद 40 जो है वो 8 के हैं, और 50 जो है वो 7 के हैं, और 80 मार्क्स लगभग 2 बच्चों के हैं। तो टोटल स्टूडेंट का काउंट कीजिए। टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है आप जानते हैं कितनी बार अकर हो रहा है। अनग्रुपिंग में लिखें तो मैं 9 नंबर को 4 बार लिखूं, तो टोटल इनको आप काउंट करें, टोटल आएगा इनका, काउंट कीजिए, 10, 26 और 8 34 और 7 41 और 2 43, समेशन एफ इज 43। तो अपना एन अब 43 है, जबकि 122 था पिछले क्वेश्चन में, वो इवन था। अब अगर ओड है तो मीडियन अरेंज करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है हमने, वो भी कर लेंगे। चलो हम एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले वही काउंट करो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ। अच्छी तरह से समझ चुके हो पिछले क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़कर। भाई 9 नंबर तो 4 ही बच्चों के हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 4 ही रहेगी, सीएफ से डिनोट करते हैं। लेकिन 20 नंबर 6 के हैं, यानी 20 वालों के 9 तो है ही हैं। भाई 20 जिनके नंबर है उनके 9 नंबर तो है ही हैं, इसका मतलब 4 और 6 अलग से, तो टोटल 10 जोड़ दीजिए पिछली फ्रीक्वेंसी में 10। जिनके 25 नंबर ऐसे 16 लोग हैं, लेकिन जिनके 25 है उनके 20 भी है, 9 भी हैं, तो 16 में पीछे वाला जोड़ो 10 तो 26। अब अगला 8 34, 34 में 7 जोड़ो 43, 43 में 2 जोड़ो 45, ये 41 होगा भाई, नॉट 3। 34 में जब आप 7 ऐड करोगे तो 41 आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और 41 में 2 ऐड करोगे 43। ये ऐसे चल रहे हैं। ऐसे करके अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अपन फाइंड आउट करेंगे मीडियन। मीडियन के लिए ओड नंबर है तो n + 1 बाई टूथ ट्रम, तो 43 + 1 बाई 2। यहां कोई n बाई टूथ प्लस वाला चक्कर नहीं है, फॉर्मूला अलग अलग होता है, फिर बता रहा हूं ग्रुप डाटा का देखिए पहले। तो 22वीं वैल्यू, 22nd वैल्यू, जो 22वीं ट्रम होगी ना वो अपनी मीडियन होगी। अब वही कंसेप्ट हमें लगाना, हमें रेंज ढूंढनी है कि 22वीं वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां आएगी। आप 43 लोगों के नंबर जब लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे 9 9 9, पहले 4 लोगों के नंबर आप ये लिखेंगे। जस्ट 5वें बंदे का जो नंबर आएगा उसके आप 20 नंबर लिखेंगे और 6 बार लिखेंगे 20 को। तो हमारी जो वैल्यू है 22वीं वैल्यू वो इस रेंज में आती है, 11 से लेकर 26 की रेंज में। यानी जब आप 11वां बंदा लिखेंगे जिसके नंबर आप पर्सन के लिख रहे हैं तो उसके नंबर 25 होंगे, 12वें बंदे के नंबर भी 25 ही होंगे। तो 11 से लेकर 26वें बंदे तक नंबर सबके 25 ही होंगे। और 22वां बंदा जब 11 से 25 के, जब 11 से 26 के पर्सन के नंबर सबके ही 25 हैं, तो 22वें बंदे के भी 25 होंगे, वो कोई स्पेशल थोड़ी होगा। तो मीडियन वैल्यू ऑफ द मार्क्स विल बी 25। तो जो मीडियन आया था हमारा 22वीं वैल्यू, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आई थी। 22वीं वैल्यू करती है लाई इस रेंज में, किस रेंज में, 25 नंबर वाले रेंज में। तो इसका आंसर 25 रहेगा।